A very good afternoon, everyone. I'm Priyanjali, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. As we are enjoying the festivities, there is a dip in the temperature too. With winter setting, all we need to be really aware about our skin dryness with focus on how we can manage our skin, which is the most common question amongst all of us. The cold air outside and the heated air indoors tend to have low humidity levels, which can lead to dry skin, chapped lips, and other discomforts. However, fear not. There are simple yet effective strategies to combat the season menace. So, ladies and gentlemen, girls and boys. To guide us on the same, that is dryness in winter, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Radhika Raheja, who is currently practicing at Metro Hospital, Faridabad. She completed her MD dermatology and venerology and leprosy from Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University in the year 2020 and MBBS from Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University in the year 2017. She has years of experience in the field and her skill and compassion have made a tremendous difference in patients' life. A warm welcome to Dr. Radhika Raheja. It's a pleasure, Doctor, to have you with us today as we are going to discuss about a very important topic, which is dryness, skin dryness. First of all, I would like to ask you, how can we prevent skin from getting excessively dry during the winter months? Okay, yeah. Hi, thank you so much for this warm welcome. We would discuss this in detail. And the first question, as you have asked me, so I would like to go through it in detail as well. So, starting from the beginning, जब हम start करते हैं and we start taking a shower and all, right? उसी में आपको बहुत सारे changes करने हैं, which can prevent excessive dryness in your skin. So, आपको lukewarm water use करना है to take a bath, not very warm water, because बहुत वो warm water से आपकी जो skin है ना, it forms a barrier. So इसमें बहुत सारे lipids होते हैं which actually provide you a moisture and it forms a layer and protects you from outside. So while you're using बहुत ज़्यादा excessive hot water, तो ये lipids सारे जो हैं वो wash off हो जाते हैं. So यही हमें protect करते हैं. Basically, you can understand this in extremes of temperature and all. So हमें बहुत ज़्यादा hot water use नहीं करना है. We have to use lukewarm water. And similarly, we have to limit the shower time as well. विंटर्स में सबको पसंद है बहुत देर देर तक शावर लेना है एंड ऑल इन वार्म वाटर एंड ऑल बट आपको 5 to 10 minutes ही लेना है दैट टू इन ल्यूकवार्म वाटर नॉट वेरी हॉट वाटर स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव एक्सेसिव ऑफ विंटर्स में बहुत ज्यादा लोगों को स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है उनको तो बिल्कुल भी हॉट वाटर से सर तो आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है इनफैक्ट हेड वॉश के लिए तो आपको ल्यूकवार्म वाटर भी नहीं यू शुड यूज जो घर का नॉर्मल कोल्ड वाटर टैप वाटर टाइप का एंड बाथ लेने के जैसे ही बाद आप बाहर निकलोगे जब आपकी बॉडी टावल ड्राइड होती है उसी टाइम पे ही आपको मॉइस्चराइजर बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर लगा लेना है यू डोंट हैव टू वेट कि पूरी बॉडी ड्राई हो जाए एंड पूरा सब सारा मॉइस्चर वाइप ऑफ हो जाए ऐसे नहीं करना है द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द बाथरूम एंड वॉशरूम एंड देन योर टावल ड्राइड at the same moment you have to apply liberal amounts of moisturizer in the full body. So these are a few things which you can, do in your daily routine to prevent excessive of dryness as well. And later, obviously, we'll discuss further onwards. राइट डॉक्टर, स्टिकिंग टू द सेम पॉइंट, आपने कहा कि Yeah. ल्यूकवार्म वाटर हमें यूज करना चाहिए खासकर विंटर के टाइम पे और बहुत ज्यादा वार्म वाटर हमें अवॉइड करना चाहिए. तो क्या जो लोग मतलब जहाँ जिस जिस रीजन में बहुत ठंड नहीं पड़ता है, जैसे मैं जिस रीजन में इस प्रेजेंटली जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ता है. विंटर ऐसा होता है कि आता है और चला जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता है. Okay. तो फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग हियर और ऐसे रीजन में जहाँ बहुत ठंड नहीं पड़ता है, क्या ठंडे पानी से नहाना भी नॉर्मल है वो सब जगह में? नहीं मतलब कोल्ड वाटर तो नहीं लाइक इट शुड नॉट हर्ट योर चेस्ट अगर आपको वो राइट. पानी लगा के चेस्ट पे बहुत ज्यादा कंजेशन फील होने लगे या फिर आपको ऐसे लगने लगे कि ये वाले पानी से नहाने के बाद आपको सोर थ्रोट हो गया या ऐसा कुछ नोज में प्रॉब्लम होने लग गई सो ऑब्वियसली डिस्कम्फर्टिंग नहीं होना चाहिए चाहे वो बहुत ज्यादा ठंडा है या बहुत ज्यादा गर्म है इट शुड नॉट बी डिस्कम्फर्टिंग ईदर टू योर चेस्ट और टू योर स्किन अब बहुत ज्यादा राइट. गर्म पानी भी यूज करो तो आप देखते हो बिल्कुल स्किन जलने लग जाती है 2 सेकंड के लिए तो राइट. सो राइट. कुछ भी डिस्कम्फर्टिंग हो आपको तो वो आपको पता चल जाएगा दैट इट इज नॉट राइट फॉर यू सो वैसे ही राइट. यूज करना है कि इट शुड नॉट हर्ट ईदर योर चेस्ट एज वेल और योर स्किन एज वेल
So neither too Right. cold nor too hot. I think lukewarm is fine, perfectly fine for every season as well. Right. Well, Yeah. doctor, again, going with the same point, you have mentioned कि नहा के तुरंत आप मॉइस्चराइजर लगाए या लोशन लगाए, जो Yeah. भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पर। तो Yeah. कोई स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? श्योर, तो आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी सर्च कर सकते हो, या आई कैन रिकमेंड सम प्रोडक्ट्स एज वेल प्रॉपरली। सो हम्म। प्रोडक्ट्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आपको वो सब जो बटर्स होते हैं ना, मैंगो बटर, शिया बटर एंड ऑल दिस, कोको बटर, ये सब यू शुड लुक फॉर दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड। ये सब बहुत मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। सेरेमाइड्स, एज यू मस्ट हैव हर्ड, आजकल बहुत ज्यादा इन हो गया है ये राइट। नेम भी, सेरेमाइड्स एंड लिपिड्स एंड ऑल दैट। तो ये सब यू शुड रीड द इंग्रेडिएंट्स। अगर ये सब है तो यू कैन गो विद एनी बॉडी मॉइस्चराइजर। अदरवाइज जो मेडिकेटेड हैं, जो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, इस वेदर के लिए बनाए जाते हैं, उसमें सम ऑफ देम आर लाइक रियली रियली गुड। वन ऑफ देम इज वेनूसिया मैक्स, दिस इज बाय डॉक्टर रेड्डीज। सो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बायो सिल्क करके है, देयर आर मेनी बट दीज टू आर लाइक रियली गुड एज वेल। Venusia, I think, suits basically all the people of all the age groups, and it's a really nice moisturizer. You will just love it. वेल, दैट वाज रियली हेल्पफुल। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आपके लिए है कि विंटर के वक्त घर पे ह्यूमिडिफायर लगाना क्या इम्पोर्टेंट है, और अगर हाँ तो किस टाइप का सजेस्ट करेंगे आप? तो सी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चेस्ट या स्किन का, तो आप नॉर्मली भी विदाउट ह्यूमिडिफायर्स भी सरवाइव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम्म। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा इरिटेटेड नोज, ड्राई लिप्स, ड्राई स्किन, या फिर कोई चेस्ट कंजेशन, सोर थ्रोट, कफ, ये सब लंग का प्रॉब्लम्स, ये सब रहता है। सो इस वेदर में वो सब चीजें बिल्कुल एग्रेवेट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप जरूर ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हो। ह्यूमिडिफायर्स में भी ना ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ होते हैं जो मिस्ट रिलीज करते हैं, कुछ होते हैं जो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो आपको वो वेपर्स वाला नहीं लेना है, बिकॉज उससे ना बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीटिंग हो जाती है इनसाइड द रूम, एंड देन ऑब्वियसली दैट ऑल्सो हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स। सो आपको वो कूल मिस्ट वाले वेपराइजर्स, मतलब कूल मिस्ट वाले ह्यूमिडिफायर्स आप लगा सकते हो। एंड ऑब्वियसली ह्यूमिडिफायर्स अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। सी, आपको वो क्लीन भी करना पड़ता है, कभी कभी वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है, तो आपकी फिर जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब होती है। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी अफोर्डेबल ऑल्सो, अगर आप उसको पूरे सीजन में यूज करोगे। So considering all this, वो जो cool mist वाले humidifiers हैं, they're quite easy, like they're quite easy on pocket as well, and they're quite easy to maintain as well. उनको बहुत ज्यादा आपको क्लीन भी नहीं करना पड़ता। अदरवाइज आजकल मार्केट में एक अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, वो भी मिस्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। वो लेकिन थोड़े से टुवर्ड्स द कॉस्टली साइड पड़ जाते हैं, बट इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, दे आर रियली गुड। बट यू शुड अवॉइड दोज जो वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड अदरवाइज अगर आपको कोई ऐसे इन जनरल प्रॉब्लम नहीं है विंटर्स में, मतलब थोड़ा बहुत ठंड तो लगेगा ही, बट अगर आपको कोई चेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है, सो यू कैन सर्वाइव द विंटर्स विदाउट ह्यूमिडिफायर्स एज वेल। बट इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग सम प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन एंड चेस्ट, हाँ, तो आप यूज कर सकते हो either a cool mist one or a ultrasonic one. राइट। डॉक्टर, वेल, हमें जैसे कि पता है कि स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करता है या गिरा Mhm. भी सकता है, बिल्ड भी कर सकता है। बहुत इफेक्ट करता है स्किन, उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। सेम गोज विद Sure. काफी लोग जो नॉर्मली चैप्ड लिप से सफर करते हैं, और विंटर में जिनको नहीं Mhm. होता है पूरे साल, विंटर में उनको हो जाता है। तो Yeah. एनी होम रेमेडीज जिस पे आप बाउच करते हैं कि ऐसे कोई घरेलू नुस्खे जो लोग घर बैठे अपना सकते हैं, जिससे वो चैप लिफ्ट से छुटकारा पा सकते हैं? Yes, yes, sure. So there must be some do's and don'ts then in this case. तो लोगों को हम्म। जब ड्राइनेस होती है, सो दे स्टार्ट प्लकिंग एंड बाइटिंग देयर लिप्स, एंड वो स्किन राइट। को पील ऑफ करने लग जाते हैं। सो ये आप, और मे बी दे स्टार्ट स्क्रबिंग ऑल्सो देयर स्किन, थिंकिंग कि हाँ ये चीज बाहर आ जाएगी। तो ये आपको हम्म। अलग से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ भी स्किन पील ऑफ नहीं करनी है, आपको एक्सेसिव स्क्रबिंग नहीं करनी है, because both these things will again lead to even more dryness, and then this will precipitate your condition. एज फार एज राइट। होम रेमेडीज आर कंसर्न, और आप जैसे लिप ग्लॉसेस वगैरह लगाते हो, तो वो भी लिपस्टिक्स ना लगा के बेसिकली यू शुड स्विच टू लिप बाम्स एंड लिप ग्लॉसेस, जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। एंड आजकल बहुत सारे लिप बाम्स आते हैं जिनमें एसपीएफ भी होती है, जिनमें वो सन से प्रोटेक्ट करने वाली प्रॉपर्टी भी है।
तो आप पहले उसको लगाओ, लाइक फर्स्ट प्रोटेक्ट योर लिप्स यूजिंग अ मॉइस्चराइजर एंड मॉइस्चराइजर विद इन एसपीएफ। उसके ऊपर से आप अपने लिप बाम्स लगाओ, तो वो चीज होने की टेंडेंसी ही कम हो जाएगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको हो भी रात में भी स्पेशली आप लिप बाम लगा के ही सो, बिकॉज रात में बहुत ज्यादा इतने लंबे टाइम के लिए आप एक्सपोज होते हो ड्राइनेस से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कुछ होम रेमेडीज आपको ट्राई करनी है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर हनी, जो भी ये थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग सी चीजें हैं ना, बटर जो होते हैं वो सब, आप कुछ कुछ ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो। तो इन सब से घी, नॉर्मल जो घर का बना घी होता है वो सब भी लगा सकते हो, तो इन सब से भी ये सब ड्राइनेस वगैरह चली जाती है। बट अगेन ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज नहीं करनी है, बिकॉज एलोवेरा अगर आप इस सीजन में बहुत ज्यादा लगाने लग जाओगे तो अगेन वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस कॉज करने लग जाएगा। सो मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी रखनी है एक दिन में वो 2 to 3 टाइम्स की ही रखनी है। बस इतना आप यूज कर सकते हो ये सब, बाकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज भी नहीं करना है। सो यू कैन यूज कोकोनट ऑयल, हनी एंड घर का बना हुआ घी, या फिर एलोवेरा, या फिर एवोकाडो बटर वगैरह आते हैं, वो सब आप यूज कर सकते हो फॉर योर राइट, लिप्स। राइट। डॉक्टर, ऑल्सो जैसे कि सभी हमें सजेस्ट करते हैं कि समर के टाइम पे बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी अक्सर या डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में। तो विंटर में पानी के इनटेक का क्या प्रोसीडियर होना चाहिए, क्योंकि एज वी नो कि पानी का हमारी स्किन के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। तो विंटर में हमें या वाटर इनटेक कैसा रखना चाहिए? वाटर इनटेक तो आपको सेम ही रखना चाहिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली आप ल्यूक वार्म वाटर यूज कर सकते हो, विंटर्स में तो और ज्यादा ड्राइनेस होती है, तो वाटर इनटेक तो एप्ट रहना ही रहना चाहिए। तो आपको 5-6 लीटर्स अ डे तो पानी पीना ही पीना है। जस्ट दैट आप कोल्ड वाटर ना लेके ल्यूक वार्म वाटर ले लो, या फिर आप कोकोनट वाटर के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो। या फिर हनी डाल के, लेमन डाल के, उन सब फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हो। वो इनफैक्ट और भी अच्छा रहेगा। बट जस्ट दैट द टेम्परेचर शुड बी ल्यूक वार्म, बाकी तो ऐसा कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो तो आप, इट्स लाइक इट गोज फॉर एवरी सीजन कि आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर तो लेना ही लेना है। तो वो अभी भी है, इस सीजन में भी है, उस पानी पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। जस्ट दैट इट शुड बी ल्यूक वार्म वाटर। Right. Doctor, also our next question for you is कि जो विंटर का जो हवा है हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को काफी इफेक्ट करता है, अक्सर हम पाते हैं इसे या देखते हैं ऐसा। तो क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए कि ये जो इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, इसको थोड़ा हम मिनिमाइज कर पाए किसी भी तरह? ओके, तो अभी तो आप देख ही रहे हो, मतलब ड्राइनेस और विंटर्स तो हैं ही, प्लस पोल्यूशन इज ऑल्सो ऑन स्टॉप। सो आपको हमेशा यू शुड वेयर अ प्रॉपर मास्क, आप हमेशा मास्क लगा के ही घूमो। बहुत सारी स्किन एलर्जीज एंड चेस्ट एलर्जीज आपको डस्ट के एक्सपोजर से ही होंगी, तो मास्क लगाने से वो सब चीजें बच जाएंगी। बाकी आप जैसे ल्यूक वार्म वाटर आई टोल्ड यू, आप वही यूज करो पीने के लिए। वंस अ डे, या फिर हफ्ते में 2-3 बार भी आप गागल्स या फिर स्टीम वगैरह भी ले सकते हो। Again, it's good for your skin as well as your respiratory health as well. बाकी एज वी डिस्कस्ड, आप ह्यूमिडिफायर्स या फिर एयर प्यूरिफायर्स वो भी लगा सकते हो। बट वो इतना ज्यादा फ्रैंकली पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। बट स्टिल अगर आप ये नॉर्मल बेसिक सी चीजें भी कर लोगे ना, लाइक स्टीम लेना एंड गागल्स लेना एंड हमेशा मास्क लगा के घूमना, सो इससे आपकी 80-90% चीजें सेटल हो जाएंगी, आई वुड से। राइट। डॉक्टर, कोई डाइटरी रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे और कोई सप्लीमेंट जिससे हम इस विंटर के ड्राइनेस को कॉम्बैट कर सकते हैं? तो हमें ना, जैसे ड्राइनेस प्रिवेंट करने के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन ई रिच फूड्स एंड ओमेगा फैटी एसिड्स, जो आपने नाम सुना होगा। तो ये सब चीजें जी। बहुत अच्छी हैं, आप इनको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हो, लाइक विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स के भी कैप्सूल्स आते हैं, या फिर डाइटरी जो फूड है जो इन सब चीजों में बहुत रिच होता है, उसमें जो भी विंटर के जो स्पेसिफिक सीजनल फूड्स होते हैं ना, लाइक स्पिनच हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, गाजर हो गई, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, हनी ले सकते हो, जो भी कीवी वगैरह ले सकते हो, सीजनल कोई भी जो भी फ्रूट आएगा एंड वेजिटेबल्स आएंगे इस सीजन में, जितना भी वो पालक मेथी, वो ग्रीन वेजिटेबल्स वाला सोर्स इस सीजन में आता है, दैट इज रियली रियली रिच इन विटामिन ए एंड ई एंड ऑल दिस, एंड वो बिल्कुल आपको ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगा। सारा वो वेजिटेबल सूप एंड ऑल दैट, वो सब आप अपनी डाइट में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आमंड मिल्क वगैरह भी आप ले सकते हो, विच एक्चुअली रियली हेल्प अ लॉट।
डाइट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो चीजें लगाने से है वो तो है ही, बट खाने में जितनी भी जैसे फ्रूटी चीजें हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा जो जूसी चीजें होती हैं, लाइक कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन तो इस सीजन में शायद नहीं मिलेगा, कीवी वगैरह है, वो सब, तो वो सब आप कंज्यूम कर सकते हो डाइट में, थोड़े बहुत चेंजेस करने से इट विल डेफिनेटली हेल्प। राइट। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट जिससे हमने शुरुआत किया था, ड्राई स्किन। आपने कहा कि चलो मॉइस्चराइजर हमें रेगुलर लगाना चाहिए, वो तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका स्किन नॉर्मल है या वो अपने स्किन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर, उन लोगों के लिए क्या जो जिनका इशू है ड्राई स्किन से, वो सर भुगतते हैं ड्राई स्किन से, स्पेशली वो फ्लेकी स्किन, बहुत ज्यादा फ्लेकी स्किन स्किन जो हम्म। हमें देखने को मिलता है, वो क्या कर सकते हैं विंटर में? बिकॉज आई हैव सीन a lot of my close ones suffer miserably during winters. तो उनके लिए आप क्या ओके। कहना चाहेंगे? देखो, बहुत सारी स्किन डिजीजेस हैं जो आपके विंटर्स में बढ़ जाती हैं। आई थिंक आप जो डिजीजेस बोल रहे हो ना, उसमें कुछ कॉमन कॉमन है जो एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, डैंड्रफ। डैंड्रफ केवल स्कैल्प तक लिमिटेड नहीं होता है, वो मेल्स में इट कम्स टू द बियर्ड, इवन इनफैक्ट कम्स टू द चेस्ट, साइड्स ऑफ द नोज में, आईब्रोज में, ईयर्स में भी आ जाता है। एक बीमारी होती है सोराइसिस, वो भी बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है विंटर्स में। उसमें ही इतने ज्यादा बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा रफ रफ सा वो मटेरियल, वाइट वाइट फ्लेक्स जैसा निकलता है। राइट। प्लस बच्चों में भी एक बीमारी होती है जिसको हम अटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो इस सीजन में बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये थोड़ी सी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं फ्रैंकली। एंड ऐसा नहीं है कि अब जब हो गया, देखो जब हो जाएगा तब तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना पड़ेगा, अगर वो इतना सिवियर है तो बिना ट्रीटमेंट के तो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन इसके लिए जो बेसिकली जिन लोगों को रहता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिनको सोराइसिस है उनकी विंटर्स जो है वो अगस्त में ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनको अगस्त से ही वो सारी चीजें करना चालू कर देना चाहिए, थिंकिंग कि उनकी विंटर्स आ गई हैं। Like they should start applying moisturizer liberally and they should start consuming, all the green vegetables and fruits. And ये सारी चीजें थोड़ा सा जैसे है कि ड्राइनेस से तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस सोराइसिस स्पेशली स्मोकिंग वगैरह से, स्ट्रेस वगैरह से बहुत बढ़ता है। तो अगर वो चीजें हैं तो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। जो डैंड्रफ वाला पार्ट है वो ऑयलिंग से और ज्यादा बढ़ता है, एज कॉन्ट्ररी टू द मिथ जो लोगों को लगता है कि हेयर ऑयलिंग से डैंड्रफ गायब हो जाता है, ऐसा कुछ भी राइट। नहीं होता है। राइट। इट्स रियली रियली बिग मिथ। तो आपको हेयर ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लस इसका फूड से भी रिलेशन है, आपके वेट से भी रिलेशन है। अगर आप ओवर वेट की तरफ जा रहे हो, अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, एंड अगर आपका बीपी वीपी हाई रहता है, और अगर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी एंड ऑयली फूड खाया है, तो इन सब चीजों से, सारी ही चीजों से इफेक्ट पड़ता है। अब जिसको सोराइसिस है वो विंटर्स में ऑलमोस्ट बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये तो है कि आपको अगस्त से ही उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी इस सीजन में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कुछ ये करना है या वो करना है। जब हो गया तो देखो, तब तो फिर ट्रीटमेंट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इट्स जस्ट दैट जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो आपको पहले से ही लेना चालू कर देने चाहिए। एटलीस्ट आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो, एटलीस्ट अपने फूड हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हो, एटलीस्ट आप स्मोक ना करो, ये कर सकते हो। बॉडी मॉइस्चराइज रखो प्रॉपरली, ये कर सकते हो। ये सब चीजें करने से भी मोस्टली डिजीजेस कंट्रोल हो जाती हैं, फ्रैंकली नॉट स्किन की, बट every other system is also ओवरऑल, affected. राइट। राइट। Yeah, राइट। yeah. डॉक्टर, ये ऑयलिंग के बारे में जो अभी लोग इतना लाउड हो गए हैं, इनफैक्ट आज से लगभग 2-3 साल पहले भी वी यूज टू योर पीपल सेइंग कि अरे आप तेल नहीं लगाते हो, बाल में तेल लगाओ। I know, I आजकल know. आजकल everyone is so much vocal about it, may it be our nearest beauticians or may it be our doctors. तो Yeah. ये अचानक से डॉक्टर ये कैसे हो रहा है? पीपल हैव एक्चुअली लेफ्ट ऑयलिंग, काफी सारे Hmm. ऑयल जो बेचते थे मार्केट में, वो सब कंपनीज आज के दिन में बहुत लॉस सफर कर रहे हैं। सो डॉक्टर, व्हाट इज द मिथ ऑल अबाउट? ये इतना साल कैसे कैरी आउट हो गया और अभी अचानक से कैसे ये ब्रेक हो जा रहा See, again, मतलब it all comes to a composition of factors. It's not कि एक चीज ही इफेक्ट होती है। आप खुद ही देख लो आजकल का हमारा खाना, और जो पिछले जमाने में वो लोग खाना खाते थे और जिस लेवल का वो लोग काम करते थे, उस लेवल का ना हम है? लोग राइट। काम कर सकते हैं आजकल, ना हम लोग उस लेवल का कोई खाना खाते हैं। खाना इज ऑल्सो हम्म। लाइक एवरी फूड हैज पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सब। कौन ही अब जा जाके ढूंढेगा सब्जियां कहाँ से लेके आ जाए, सब्जियां लिटरली। तो एग्जैक्टली। ऐसे तो आदमी कुछ खाए ही ना और कुछ करे ही ना। बट ऑयलिंग, आई डोंट नो, पहले के जमाने में पता नहीं वो लोग कैसे इतना ऑयल ऑयल लगा के दे यूज टू, वो तो पूरे पूरे हम्म। दिन ऑयल लगा के बैठे रहते थे।
आई गेस राइट। इट्स ऑल अ कॉम्पोजिशन ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज हमारा सब कुछ ही इफेक्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फूड हैबिट्स टू वर्क हैबिट्स। दिन भर हम बस बैठे रहते हैं, टू स्मोकिंग लेवल्स, इतने ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं स्मोक एंड ऑल दैट। तो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स ही रोल प्ले कर रहे हैं। बट सी, जो ये डैंड्रफ वाला पार्ट है ना, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, एंड फंगल इन्फेक्शन आपको कहीं भी हो बॉडी में, इट ग्रोज ऑन मॉइस्चर। तो अगर आपने हम्म। देखा होगा, फ्रीक्वेंटली लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो थाइस के पास होता है या फिर जेनिटल्स में होता है, बिकॉज वो राइट। साइड हमेशा बंद रहती है, वहां पे इतना मॉइस्चर रहता हम्म। है, इतना फ्रिक्शन रहता है कि इट्स नॉट एक्सपोज टू एयर। तो सिमिलरली गोज विद योर स्कैल्प एज वेल। तो जहां जहां भी ऑयल होगा, इसलिए आई टोल्ड यू कि ये जो डैंड्रफ वाला पार्ट है वो लोगों को यहाँ पे नोज के साइड्स में भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, बिकॉज यू नो ना, नोज कितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। सो राइट। एवरीवेयर जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, दिस फंगस ग्रोज, मतलब एवरी फंगस ऑन दिस अर्थ ग्रोज ऑन मॉइस्चर। तो जहाँ मॉइस्चर उसको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, चाहे वो पसीना हो, चाहे फिर वो ऑयल ही क्यों ना हो, चाहे स्वेटिंग हो, जो भी हो, चाहे आप एक्सरसाइज करो। अब इस सीजन में, मतलब फ्रैंकली आई यूर राइट, लाइक अभी भी बहुत लोग फ्रैंकली बहुत पूरा पूरा दिन ऑयल लगा के घूमते रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हम्म। पीपल इसलिए नहीं लगाते कि उनको हेल्दी बाल रखने हैं या क्या, दे जस्ट थिंक कि उससे थोड़ा सा फ्रिज कंट्रोल हो जाता है एंड थोड़े से मैनेजेबल लगने लग जाते हैं। तो मैनेजेबल करने के लिए तो फ्रैंकली और बहुत सारी और चीजें हैं, लाइक वी कैन यूज हेयर सीरम्स एंड ऑल, जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। दे आर मेडिकेटेड ऑल्सो, दे कंट्रोल योर हेयर फॉल ऑल्सो, एंड उससे कोई आपका डैंड्रफ का टेंडेंसी भी नहीं बढ़ेगा। सो आई राइट। थिंक इसलिए पीपल हैव बिकम सो आउटस्पोकन अबाउट इट, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग एंड सेइंग कि नहीं, हमने ऑयल लगाया था तो वो चीज तो गायब हो गई थी। वो एक दिन के लिए बस आपको लगता है कि हाँ, वो जिस दिन ऑयल लगाया है उस दिन आपको फ्लेक्स नहीं दिखाई हम्म। देंगे, नेक्स्ट डे यू विल सी कि एकदम वो फ्लरिश हो चुका है। सो राइट। ऑयलिंग तो नहीं करनी है एट एनी केस, मतलब इन एनी केस, इनको जिनको स्पेशली डैंड्रफ है उनको तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड ये ओवरनाइट ऑयलिंग का भी जो फंडा है वो भी अब लोगों ने फ्रैंकली बंद ही कर दिया है काफी। राइट। अगर राइट। आपको, इफ यू आर समवन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑयलिंग, तो आप ये कर सकते हो कि 10 डेज में एक बार आपने जस्ट बिफोर द शैम्पू 1-2 आवर्स के लिए ऑयल लगा लिया, दैट इज मोर देन इनफ। उतनी देर से ज्यादा तो लगता भी नहीं है ऑयल को एब्जॉर्ब होने में, तो आप ये कर सकते हो। बट आई गेस ये सब चीजें जो चेंज हो रही हैं, इट्स इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स, नॉट जस्ट कि केवल ऑयलिंग से ही सब कुछ हो रहा है, सब सब कुछ ही इफेक्टेड है, यू नो, एज वी डिस्कस, आवर फूड हैबिट से लेके सब कुछ। सो एवरीथिंग प्लेज अ राइट। रोल। राइट। राइट डॉक्टर, ऑल्सो आई थिंक द वेदर कंडीशन जिस तरीके से चेंज हो रहा है, हमारे क्लाइमेटिक एग्जैक्टली। कंडीशन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है। डॉक्टर जल्दी, बहुत ही जल्दी हम हमें हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत देर तक इंडोर हीटिंग की ओर अगर हम एक्सपोज रहे, तो क्या वो किसी भी तरह हमारे स्किन को या हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इनफैक्ट इट इज वेरी डेंजरस। अगर आप कमरे में, बंद कमरे में हीटर्स एंड ऑल लगा के बैठे हुए हो, तो उससे बहुत ज्यादा रूम में ड्राइनेस हो जाती है। टू द एक्सटेंट, एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये हीटर्स वगैरह जल रहे होते हैं ना, आप वहीं पे ब्रीद कर रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी प्रोड्यूस होती है, विच आर वेरी हार्मफुल गैसेस। तो वो आप इनहेल भी करोगे ही, क्योंकि अगर वो प्रोड्यूस हो रही है आपके एनवायरनमेंट में, सो इट कैन अफेक्ट योर लंग्स से लेके ब्रेन से लेके एवरीथिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन थिंग जो जाके ब्लड वेसल्स को चोक कर देती है, और स्पेशली जो लोग एल्डरली हैं या जिनको कोई हार्ट की डिजीज है, या जो स्मोक करते हैं, जो किसी भी तरीके से बेसिकली उनका लंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको तो बिल्कुल भी हीटर्स के आजू बाजू भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो कार्बन राइट। मोनोऑक्साइड कैन एक्चुअली प्रोड्यूस चेस्ट पेन ऑल्सो इन दोज पीपल। चेस्ट पेन से लेके, ब्रेन स्ट्रोक से लेके, ड्राई स्किन से लेके, आपको कुछ भी हो सकता है। एंड इनफैक्ट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, मतलब इट कैन प्रूव फेटल टू यू एज वेल। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं कि स्किन ड्राई हो जाएगी, नोज ब्लॉक्ड हो जाएगी, लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपका सोर थ्रोट हो जाएगा, कफ होगा, इरिटेशन होगा, वो सब तो है ही, बट दैट इज वेरी माइनर, वो तो चलो आप फिर भी कंट्रोल कर लोगे। बट अगर चेस्ट पेन होने लग गया एंड ऑल दैट, तो फिर तो इट विल नॉट बी अंडर योर कंट्रोल। तो स्पेशली आपको बिल्कुल भी, लोगों लोगों को बहुत आदत होती है बिल्कुल यहाँ पे वो हीटर लगा के बैठ जाएंगे। हीटर चाहे कोई भी हो, रॉड वाला हो या वो जो एयर वाला होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बेसिकली हार्मफुल। तो एटलीस्ट आपको, अगर आप नॉर्मली भी बैठे हुए हो, तो आपका एक, मतलब वेंटिलेटेड रूम तो होना ही चाहिए, एंड हीटर बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 2 फीट अवे फ्रॉम यू। तो थोड़ी बहुत देर के लिए आप जला के उसको बंद कर दो, जब रूम वार्म हो जाए, तो सोते टाइम तो आपको स्पेशली बिल्कुल भी नहीं उसको जला के सोना है, बिकॉज रूम्स दोनों तरफ से क्लोज्ड रहता है, एंड वो पूरा एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस एंड ऑल, इट इज वेरी टॉक्सिक एक्चुअली। तो आप थोड़ी देर पहले राइट। थोड़ा सा रूम वेंटिलेट करके आधे 1 घंटे के लिए जला के छोड़ दो,
and then सोते time you should properly like switch it off only. राइट। वेल डॉक्टर, आई नो कि बहुत कम टाइम लेके आज आप हमारे साथ आए हैं, बट वी हैव आवर व्यूअर्स आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। वी कैन सी दैट Yeah, बहुत बेहतरीन एंगेजमेंट है आज हमारे व्यूअर की तरफ से। सो एक okay, क्वेश्चन हम लेंगे हमारे व्यूअर्स का। अभी सेन पूछ रहे sure. हैं, आर देयर एनी सर्टेन फूड आई कैन ईट टू हेल्प विथ ड्राई स्किन इन विंटर? और एक और सवाल है, विल ट्राई टू मर्ज बोथ द क्वेश्चंस। पूजा Yeah, शर्मा yeah. पूछ रही है, व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव अ स्किन कंडीशन दैट गेट वर्स्ट इन द विंटर? प्लीज प्रोवाइड मी द ब्रीफ समरी। Okay, so foods as we already discussed, you can consume all the seasonal fruits जो आपको especially इस season में आते हैं, including पालक, गाजर, मेथी and गाजर we already discussed, kiwi, sweet potato, ये सब चीजें हैं which are tasty as well, plus they provide good nourishment to you. Avocados आप राइट। ले सकते हो अगर आपको मिल जाए तो, कीवी ले सकते हो आप, कुकुम्बर्स ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, मिल्क में हनी डाल के ले सकते हो या वाटर में हनी डाल के ले सकते हो, आमंड मिल्क, ओट मिल्क, जो प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड इन दिस सीजन। वो सब आप ले सकते हो। एंड अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, सो वी डिस्कस्ड आप विटामिन ई के कैप्सूल्स, या फिर ऑयल में भी आप कॉड लिवर ऑयल या ओलिव ऑयल में खाना बना सकते हो, या फिर ओमेगा फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स भी कंज्यूम कर सकते हो। Plus the other question, as you have a condition which gets dry in winters, so I would say कि firstly I do not know which condition you have, so the specific treatment तो I cannot recommend, but as we राइट। discussed कि आपको in any condition dryness को prevent करना ही करना है, dryness and itching, these are the two things जो आपकी skin condition को winters में worse करेगा ही करेगा। So starting with the first thing कि आपको moisturizer बहुत ज़्यादा vigorously लगाना है। You can use it in the day as many times as possible, and I've told you one really good moisturizer as well. You can use Venusia Max moisturizer या कोई भी moisturizer with shea butter, cocoa butter and vitamin E, आप कोई भी normal सा body moisturizer use कर सकते हो। प्लस फूड विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ विटामिन ए के कुछ कैप्सूल्स आते हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। एंड आपको इन एनी केस इचिंग भी अवॉइड करनी है। इचिंग जब भी हो तो आपको एक एंटी इचिंग के लिए पक्का टैबलेट होगी आपके पास कोई, तो वो भी आप कंज्यूम करो, बिकॉज इचिंग से भी ये कंडीशन वर्स हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, इफ इट डज नॉट गेट इम्प्रूव्ड, देन यू शुड ऑफ कोर्स कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल। राइट। डॉक्टर, ऑल्सो हम नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये रेगुलर ड्राई स्किन है या कोई सीरियस स्किन कंडीशन है? हम डिफरेंशिएट कैसे करें? अक्सर जो है पेशेंट्स इसी चीज में नेग्लिजेंट हो जाते हैं अपने स्किन को लेके कि चलो राइट। विंटर है, समर में ठीक हो जाएगा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें इस चीज को? डिफरेंशिएट देखो, आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विंटर इफेक्टेड साइट्स कौन सी हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज साइट्स होती है ना, जहाँ हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लाइक हमारे हैंड्स एंड फीट होते हैं, ईयर्स होते हैं, राइट। नोज होती है, लिप्स होती है। इन पे अगर कोई भी चीज हो रही है तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए कि दिस कैन बी थोड़ा सा ट्रिकी एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। हल्का फुल्का जैसे लिप्स आपके पिंक हो गए या चीक्स आपके पिंक हो गए बहुत ज्यादा विंटर्स में, तो वो चीजें ठीक है। वो जो बहुत ज्यादा हम्म। सीरियस कंडीशंस है ना, एक हम लोग पर्नियोसिस बोलते हैं, दिस इज लाइक वेरी वेरी कॉमन। आई एम श्योर आपने सुना होगा लोगों के हाथों पैरों में कुछ जैसे लगता है कि स्किन हट गई है, बहुत लाल लाल सा हो जाता है। कभी कभी राइट। आपको वहां पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स भी हो जाएंगे, जैसे ऐसे लगेगा कि जल गया है। तो एक हम्म। फ्रॉस्ट बाइट करके भी चीज होती है विच इज ड्यू टू एक्सेसिव विंटर्स। तो अगर आपको कहीं पे भी, या फिर अगर आपकी फिंगर्स एंड टोज का कलर चेंज होने लग गया हो नॉर्मल कलर से, नॉर्मल पिंक जो नेल्स के अराउंड का कलर है, वो अगर आपका चेंज होके टू पर्पल या फिर ऐसा कुछ ब्लैकिश या ब्राउनिश सा होने लग जाए, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। या फिर अगर यहाँ पे कोई ब्लिस्टर्स या अल्सर्स बने, कोई फ्लूइड फिल लीजन या कोई घाव टाइप का प्रॉपरली बन गया हो, तो ये सब थोड़ी सी अलार्मिंग चीजें हैं जिसके लिए आपको यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अदरवाइज नॉर्मल सी ड्राइनेस है एंड नॉर्मल सा लिप्स विप्स ड्राई हो रहे हैं, तो वो तो चलो चलता है। कुछ लोगों को फिश स्किन हो जाती है, लाइक उनकी पूरी बॉडी इज लाइक अ फिश, थोड़ा सा स्केल राइट। स्केल सा निकलता है। तो वो भी एक कंडीशन है जो विंटर्स में बहुत बढ़ती है, एंड उसके लिए भी यू शुड सीक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एज वेल। वेल, हमारे व्यूअर्स को हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज आप सेल्फ मेडिकेशन पे पहले नहीं जाएं। आप पहले एक्सपर्ट या के पास जाएं एंड डेफिनेटली। देन लेटर ऑन यू कैन ट्राई व्हाटसोएवर यू वांट, बट एक्सपर्ट फर्स्ट। डॉक्टर, बिफोर यू लीव, एनी टेक होम नोट यू हैव फॉर आवर व्यूअर्स टुडे? टेक होम नोट इज दैट कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको अपने स्किन के साथ इन दीज विंटर्स। लोग ये सीरम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं अपने फेस पे, उनको ये चाहिए वो चाहिए, आप कुछ भी मत लगाओ।
स्पेशली ये जो भी एक्टिव्स होते हैं ना, जो इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं विद विटामिन सी, रेटिनॉल या सीरम्स जो भी हैं, वो सब आपको बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के विंटर्स में बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आर अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी वेड वेरी सून, तो आपको पार्लर में ब्लीच एंड वैक्स नहीं कराना चाहिए। वी ट्रीट ब्राइड्स जो जिनकी 3 दिन में शादी है and अपने फेस पे वो पता नहीं क्या क्या लेके आ जाती है बिकॉज दे गॉट वैक्स्ड और ब्लीच्ड। सो वो सब चीजें नहीं करनी है आपको। आई नो इट्स इरेलेवेंट टू ड्राई स्किन, बट आई शुड say this message because it's important. And otherwise, immense and immense of moisturizer and immense of water will take care of most of the things as well. So yeah, that's it. Well, that was Dr. Radhika Raheja for us. Thank you so much, Doctor, for your valuable Thank time. It you. has been a Thank you so very much. informative session for our viewers, and I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting dry or such problem. And as we all always say, self-medication के और ना बढ़े, अपनी nearest dermatologist के पास तुरंत जाए. Also, thank you so much, viewers, for your excellent participation. Uh, and to get latest update on how to keep your skin healthy, you know what to do. Like us, follow us, our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, Instagram. Thank you so much. Have a great day. Stay safe Thank and stay you. healthy. Thank you.